If your Sundays are more about crying and less about fun, then welcome to the real aspirant life. And also, you're at the right place, because on this channel we rant about aspirant life and try to find solutions to those problems like an optimistic officer. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Jessica Singh and I'm a UPSC Civil Services aspirant preparing for my second attempt in 2027. So, a lot of you guys are new to this channel and a lot of new people have joined the channel, and I think there's a need for me to reintroduce myself. And also today I'm gonna tell you guys about from where I've taken my coaching and just give you a little review about it. Welcome to my August lock-in series first up, and this is a series where I'll be showing up for the next 21 days, नहीं 21 days minus 7 days CSAT कर लो खुद, and उसमें मतलब I'm gonna be showing up for this August, and my challenge is to complete all my backlog lectures and from September get on to studying. So that's what my target is for the August lock-in series, and I really hope you guys are also working for it and all of those things. So yeah, first up, let's get on to who I exactly am and from where I have done my lectures and taken my coaching from. So my name is Jessica Singh, मैं बता चुकी हूँ, and I have done my BCom honors from Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, University of Delhi, and I graduated a year back, and it has been 1 year into this preparation, and my first attempt did not really go that well because of course prelims 2026 was not for weak-hearted people, and I did attempt it, and I'm very proud of it that I was able to sit there for so much of time. And what I noticed from my experience was that in the morning there were so many students who came for the GS, but CSAT के टाइम पे कोई था ही नहीं, और मेरे को पता था कि मेरा तो GS नहीं निकलने वाला, मैं फिर भी CSAT के लिए चली गई थी, एंड पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत भी आई थी वो करने की, पर whatever. So it was prelims 2026 that I could not get through, and I was not really prepared also for it because I've discussed the reasons in the third video of my channel, and whatever, उसमें मेरा पूरा experience है, ठीक है. Now about my coaching. So I have taken my coaching from Next IAS, and it is a very renowned institution, and I think it was one of my best decisions because this was a decision that I did not really think a lot about, and one of the seniors in my college actually recommended me this because she was already a part of it, and she just told me about the pedagogy and everything, and then I was like, okay, this sounds like me, and that's the reason why I got enrolled in Next IAS. But initially I was pretty inclined towards one of the institutes, which is actually a very famous one, but then when I went there, I don't know, when I went there, of course I was in like second year of my college, and like third की starting, second का end, ठीक है. When I went there, I don't think they were very supportive people, and जितने भी लोग बैठे थे ना वहाँ पे, वो बस कोर्स बेचने के लिए बैठे हुए थे, and मुझे बिल्कुल भी comfortable नहीं लगा as I entered that institute, and I did not feel comfortable enough, and they were just saying 2 साल का कोर्स इतने का है, 1 साल का कोर्स इतने का है, and all of those things. और मुझे फिर सही नहीं लगा, and then I rethought about my decision, and I went with the decision of my senior because उन्होंने सही बताया था, and I don't regret it anymore. I guess Next IAS is one of the best institutes, and also they have not paid for it. 200 सब्सक्राइबर्स पे कौन पे करता है, बताओ कौन पे करता है? मैंने ही पे किया फॉर माई कोर्स, एंड बेसिकली आई एनरोल्ड इन देयर एलिवेट कोर्स विच इज़ अ 2-year प्रोग्राम, एंड शायद मुझे उस कोर्स में नहीं करना चाहिए था, और शायद मुझे GS फाउंडेशन ही डायरेक्टली कर लेना चाहिए था. ये डाउट्स आते हैं मुझे आजकल बहुत ज़्यादा, पर आई थिंक वो कोर्स मेरे लिए, जैसे बेसिकली द एलिवेट कोर्स में क्या होता है ना कि इट इज़ डिवाइडेड. फर्स्ट ईयर जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, एंड द सेकेंड ईयर इज़ एक्चुअली द GS फाउंडेशन कोर्स. इन द फर्स्ट स्टेप कोर्स दे टीच यू द बेसिक्स एंड NCERTs एंड ऑल. So that is the one that I took when I was in my college. कॉलेज में होते हैं हम एकदम, अब मैं I don't know if that is a good word to take, but लफंडर,
ठीक है, तो मैं कॉलेज में इतना सिंसियरली नहीं प्रेपरेशन कर पाई, मुझे डेप्थ ऑफ द प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं पता थी इन माई कॉलेज, एंड उस वजह से आई थिंक मैंने अपना फर्स्ट ईयर थोड़ा सा वेस्ट करा है इन दिस कोर्स। एंड और मतलब वैसे तो मैंने बहुत क्लासेस अटेंड करी हैं, पर स्टिल आई वॉज प्रिटी इमेच्योर एट इट। इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड, लाइक आई वॉज फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मुझे चाहिए थे थोड़े बेसिक्स, तो इसलिए मैंने GS कोर्स ज्वाइन किया था, पर फर्स्ट स्टेप कोर्स ज्वाइन किया था। पर अगर आपके बेसिक्स सही हैं और आप कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली GS फाउंडेशन भी कर सकते हो, क्योंकि उससे यही फ़ायदा होता है दैट यू गेट 1 फुल ईयर जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट इनिशियली एज आई वाज अ लिटिल चैप, मुझे पता नहीं था कि कैसे प्रिपरेशन होती है एग्जैक्टली, और ना ही मेरे को लगता था ओ माई गॉड आई एम वेरी वेल रिसर्च्ड ये वो, बट आई वॉज नॉट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड to all the beginners that please form a strategy and then choose a coaching which aligns with your strategy. Don't really jump into any coaching and then form your strategy. फर्स्ट फॉर्म अ स्ट्रैटेजी फॉर यू कि इधर से इधर तक मुझे मेंस पढ़ना है, इधर से इधर तक मुझे प्रीलिम्स पढ़ना है। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इट विल बी थ्रू द कोचिंग्स, ओके। सो जस्ट यूज कोचिंग टू योर बेस्ट एंड डोंट लेट योर बेस्ट बी डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ योर कोचिंग्स। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू गाइज कैन ऑल्सो डू. Now for my GS Foundation course, a little review about NextIS. Very cooperative people, very good faculty, and the pedagogy resonates with me a lot because वहाँ पे सारे टीचर्स नोट्स बनवाते हैं, एंड मेरे को आदत है स्टार्टिंग से ही लिख के पढ़ने की, तो मैं एक बार नोट्स बना लेती हूँ कोचिंग में, एंड देन आई ट्राई टू remember it by writing it again and again. And the notes per se are very good, and आई थिंक द फैकल्टी इज़ जस्ट सो गुड. मतलब मैं ना एक टीचर की ना इतनी यूनिक बात है इन दैट कोचिंग कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. मैं अब एकदम लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल्ड वीडियो कि कैसे है ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट फॉर नाउ आई जस्ट से कि हर टीचर में कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर है, एंड बाकी कोचिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट अ मीडियम. ये बस एक माध्यम होता है टूवर्ड्स द एंड, ठीक है. अब उस माध्यम में कोचिंग और तुम साथ में चल रहे होते हो, तो तुम अगर साथ में नहीं चलोगे कोचिंग के, तो कोचिंग विल नॉट बी हेल्पिंग यू. सो दिस इज़ अ मिस्टेक दैट आई हैव डन इन माई प्रेपरेशन, जो मैं बता रही हूँ सबको. मैं बहुत इमेच्योर थी कि मैंने स्टार्टिंग में इतने बैकलॉग्स बना लिए, मैंने डेप्थ ऑफ दिस प्रेपरेशन को नहीं समझा, मैंने सीरियसनेस ऑफ दिस प्रेपरेशन को नहीं समझा. और इनिशियली मुझे तो मुझे ऐसा लगता था कि वाओ कोचिंग लेंगे, मेन प्री लिखेंगे, मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू होगा, हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू गिव इट दैट टाइम. और कोचिंग्स बहुत हेक्टिक हो जाती हैं, तो तुम्हें कोचिंग्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होता है बिफोर योर प्रीलिम्स, ओके. और मेरी कोचिंग तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक मार्च एंड में ख़त्म हुई थी. उसमें भी मेरी डबल क्लासेस एंड में होने लग गई. फिर CSAT की क्लास, येस आई हैव टेकन अ कोर्स ऑफ CSAT ऑल्सो फ्रॉम NextIS ओनली, एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड. मंजुल सर टीचर्स देयर एंड ही टीचर्स अमेजिंग, ठीक है. तो बहुत हेक्टिक हो जाता है. सो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि कोचिंग को एक माध्यम की तरह लो, नॉट एज एन एंड, ओके. Now about my optional. So my optional is anthropology, which is basically the study of humans. And how did I opt my optional? ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी, पर अभी के लिए my optional is anthropology, and I have taken the coaching from NextIS itself. I know there are many teachers out there who are actually very good, like Karandeep sir and all, but I think मुझे उस टाइम पे ज़्यादा I was not aware first up, and then I thought कि NextIS से मेरा experience काफ़ी अच्छा है, and I should be going for Sudhir sir only, who teaches in NextIS, okay. So for my review about the optional coaching, I don't think you can get anyone better here, because I have not seen other people, but I think it was the best for me. तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुधीर सर के साथ. मतलब मेरा माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा मैच करता है उस टीचर से, तो इसलिए मैं उनसे बहुत रेजोनेट भी कर पाई. तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है. अगर तुम्हारे किसी टीचर से ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर नहीं मैच करता ना, तो तुम शायद उनसे कभी रेजोनेट ही ना कर पाओ. तुम्हें उनकी हर बात ही बहुत ऐसे लगेगी कि क्या बोल रहा है यार.
और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सुधीर सर के साथ आई थिंक वेवलेंथ काफ़ी मैच करी थी मेरी, एंड आई लव्ड द वे ही टॉट, आई लव्ड द वे ही हैज़ मेड अस राइट आवर नोट्स, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं और एक्सप्लेनेशन वर जस्ट सो गुड, एंड आई थिंक ही इज़ जस्ट सो पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट, जो दिखता है, मतलब दिखता है कि वो कितने पैशनेट है अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड आई थिंक वो पैशन से ही ना वो एनर्जीज, ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं जिससे तुम्हें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है सब्जेक्ट. सो येस, फॉर मी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आई थिंक इट वाज द बेस्ट चॉइस. Yeah, so that was about my coaching, from where I've taken my coaching and all of those things. And I think next IS my faculty is very good. They're very cooperative. तुम्हें कोई problem है, you can just text them and they will reply back to you in just a few hours, and they're very cooperative, and I think nothing better than that. There's also a mentor assigned to me in next IS, wherein I can just meet him. He calls me up and I go to the next IS institute in ORN, and वहाँ पे we just discuss कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए and all of those things. And also he's very supportive, so hats off to him also. And he was actually my teacher in the first step course, and I was like just so impressed by him कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मेंटोर तो मुझे यही सर चाहिए, एंड लकीली मेरे बैच के मेंटोर वही बन गए, एंड ही एक्चुअली गाइड्स वेरी वेल एंड ही अंडरस्टैंड्स द कंसर्न्स एज वेल. So now on to my August lock-in challenge, and let me show you guys how the last week was. Okay, so if I show you guys, इसमें time दिख रहा ही नहीं है, दिख जा. Okay, so it is around 20 hours 5 minutes, और ये updated नहीं है because yesterday night I was studying, so I recorded it with my mobile phone. And एक second. Yeah, so I recorded it with my mobile phone, and the time is right now 22 hours 45 minutes, and not that great I think, because I have to take it to 48 is my goal per week, and abhi ke liye it's just very less. So we'll try to improve this, because last week मैंने थोड़ा सा अपने आप को डील दी हुई थी कि चलो आराम से करते हैं क्योंकि मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं. सो यस, वो डील अब थोड़ी सी कम होगी, एंड अब थोड़ी चीज़ें, हर जैसे सेल्फ स्टडी की कुछ चीज़ें अब हम ऐड करनी शुरू कर देंगे इन दिस वीक. एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर मेरा बहुत ज़्यादा छूट रहा है, बिकॉज इतने लेक्चर्स हैं ना कि बस समझ नहीं आ रहा है कि लेक्चर्स ख़त्म करूँ क्या करूँ, इतना कन्फ्यूजन हो रही है. पर हाँ, लेक्चर्स आर माई प्रायोरिटी, ये तो मुझे बहुत क्लियर है. तो यस, अभी लेक्चर्स के लिए मैं थोड़ी चीज़ें सैक्रिफाइस कर रही हूँ. एंड या दैट्स अबाउट द ऑगस्ट लॉक इन एज वेल. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मुझे डिस्कस क्या करना है, टाइम दिखा दिया. नाउ माई गोल भी बता दिया, 48 hours. हु एम आई हैव डिस्कस्ड इट. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट माई ऑप्शनल एंड द प्लान. ओके, सो नाउ माई प्लान further is going to be, after completing the classes, I'll go meet my mentor in ORN, and वहाँ पे I will just discuss with him the strategy आगे की. And yeah, I think that's pretty much it about my updates. Also, if you guys have any issues, any problems, or if you guys want to discuss anything, I have finally made an official email ID for this channel. तो उसका वो ईमेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन, मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहाँ पे जाके यू कैन जस्ट हैव एन एक्सेस टू इट. एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी problems that you are not comfortable discussing in the comments, then you guys can definitely mail me there. And yeah, I think I've discussed everything. Also, I did not really record yesterday because I needed a break, because it gets hectic, and Sundays, or usually on Sundays I cry because ऐसे ही मन करता है, and I just don't, I mean, it gets very, they say that the curse of discipline is that every day looks the same, and the curse of indiscipline is that every year does. तो अभी मैं ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन है. यूजुअली व्हेन आई फील बैड आई गो आउट, एंड मैं नॉर्मल वीकडेज में अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखती हूँ, एंड ऑन वीकेंड्स आई लिटरली नीड टू गो आउट. बट दिस टाइम आई डिड नॉट गो बिकॉज I didn't feel like, and I was like, I'll just sit at home, do something fun, which I could not, which I did not. And कल मुझे थोड़ा सा काम भी करना पड़ गया था. And yeah, that's about it for my
वीकली अपडेट्स एंड माई कोचिंग का रिव्यू, एंड ऑल्सो लाइक कोचिंग में मेरे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जैसे कि जिनको तुम यूट्यूब पे भी एक्सेस कर सकते हो. सो बेसिकली दे हैव दीज सेशंस ऑन यूट्यूब. द नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट पे तुम जाओगे ना, वेबसाइट नहीं सॉरी, the YouTube channel, it has some of the discussions, जो उनकी panel discussions होती हैं on the recent topics, they are by the teachers only, by our faculty only, and I think उनका perspective सुनना बहुत बहुत important है, and वो बहुत अच्छे perspectives लाते हैं to the table, so you guys can go and check out that. And also one more thing, do not forget to watch विभास झा सर का budget और economic वो इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे. मैं भूल रही हूँ क्योंकि पीछे बच्चे इतना चिल्ला रहे हैं ना कि मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, पर यही चैलेंज है. सो या उनका इकोनॉमिक सर्वे और बजट की डिस्कशंस बहुत अच्छी होती है. एंड ऑल्सो देयर इज़ वन प्रोग्राम कॉल्ड कैप जो प्रीलिम्स से पहले होता है. एंड इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जैक्ट हमारे नोट्स से, विभास झा सर के नोट्स से क्वेश्चंस आए हैं. एंड वो एक्चुअली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. एंड आई ऑल्सो फील दैट ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट. लाइक एवरी सिंगल टीचर हु इज़ देयर इन एक्साइज इज़ वेरी वेरी पैशनेट about his or her subject, be it IR, be it history, be it any subject. Okay, they're very passionate about it, and that is something that I admire in my teachers. मेरे लिए कोई रोल मॉडल्स नहीं है इस, मतलब मेरे लिए कोई रोल मॉडल है ही नहीं इस दुनिया में, पर मैं इंस्पिरेशन ज़रूर लेती हूँ सबसे, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है, और मेरे लिए इंस्पिरेशन, माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन आर द टीचर्स फ्रॉम नेक्स्ट IAS, एंड दे जस्ट मोटिवेट मी सो मच. उनको देख के ऐसा लगता है वाओ, what a mind, ऐसा फील होता है. एंड yeah, I think that's it for this video. Let's not खींचो it further, but if you guys have any queries, you guys can go and access, you guys can text me on my email or let me know in the comments down below how is your preparation going. And you guys can also let me know about the ideas about what content I can create. अगर मुझसे वो ideas resonate करेंगे, then I will definitely make videos on that and also shorts on that. And for now, that's it for this video. Bye bye and Jai Hind.